शाम को मैं ब्रोकली का वो बनाऊंगी। I would like to give some guidelines to everyone. Kindly keep yourself on mute. आप अपना कैमरा ऑन रख सकते हैं बट द सेटिंग शुड बी फॉर्मल। और सेशन में कई बार होते हैं कि आप लोग कुछ इस तरह के कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं जहाँ पे पेन से स्क्रीन पर कोई स्क्रिबल करने लगते हैं। अवॉइड दैट एज वेल और म्यूट पे रखिएगा सभी लोग। आप जब क्वेश्चन पूछेंगे तब आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं।
Hello. Hello. Hello, Sahars. Thank you for joining this session today, and I welcome you in today's answer writing session. So, first of all, good evening, everyone. Today, we have a very esteemed guest, Sahars Kumar, and he has secured All India rank 153 in this year's UPSC CSE examination. Today, he is here to help you in improving your answer writing skills and also to guide you regarding UPSC preparation. We are also joined by Virendra Oja sir, who is currently serving as a Principal Income Tax Commissioner in Mumbai. And sir also has experience of guiding and inspiring various aspirants, giving ranks like All India rank 55, Bhavna ma'am. So thank you, Sahar and Virendra sir, for joining us today on this session. Thank you. Okay, so Saharsh, we can start the session and as आप अपनी screen share कर सकते हैं and the session can be started. Oh, hi. सर This वीडियो is, सर वीडियो ऑन कर लो. सर It will उनका give you more. वेबकैम में कुछ इशू है तो वीडियो नहीं हो अच्छा. पाएगी. should I continue, sir? Yes, sir. Start. Okay. Hi everyone. जैसे मैम ने इंट्रोडक्शन दिया था, मैं साहर्ष कुमार and जैसा आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, I secured all the around 153 in UPSC of 2024, and I'll just start with giving a short background about myself and giving an overview of what this session is about to be. So I did my BTech from IIT Kanpur and my MBA from IIM Calcutta. And uske baad, after that, I started getting into preparing for the civil services, which was somewhere always a dream of mine. And anyways, so this was my fourth attempt, and I scored All India rank 2023, thankfully. And so that was about me. And here I want to give you an overview of this session. So what I plan to do is in this particular live answer writing session is uh, walk you guys through four mains questions जो कि आए थे mains में UPSC में PYQs हैं, and I want to walk you guys through it so that आप थोड़ा एक understanding आपने develop कर पाए कि while you're writing mains answers, आप किस तरह का thought process रखें, किस तरह से सोचे questions को, किस तरह से question को analyze करें and answer को structure करके किस तरह आप लिख पाए. That the practice or the strategy that I utilize that may be able to fetch marks as well. Regarding my marks, I scored 801 in mains this year. So I feel that somehow जो भी मैंने strategies last time से की थी adopt, change करके, somehow those worked, and that is what I would want to share with you guys. So so this is a question from this year's mains. And it was asking to compare the society and economy from Rig Vedic age to the later Vedic period. So we know. So my point is that जब ये question आपके सामने आएगा, so what I used to do is as soon as I come across a question, जैसे ये 10 marker है 150 words. As soon as I used to come across a question, I used to spend a few seconds to think about कि what is my understanding of the question और मैं कैसे इसको interpret करूँ, कैसे मैं इसको लिखूँ, कैसे मैं present करूँ. Now UPSC mains के लिए हमें ये समझना होगा that we have to understand that the person, the individual who is checking our answers, he or she, they spend about 1 minute per question. So वो 1 minute के अंदर हम किस तरह अपने question का आंसर लिखें जिससे we are able to generate maximum interest और कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन की ज्यादा
अंडरस्टैंडिंग दे पाए एवेल्युएटर को कि हम हमें आती है चीजें और हमने सही से लिखा है, हमने सही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे हमने मेंशन किए हैं। दैट इज द बेसिक आइडिया। और इसके लिए अगर हमें देखना है, कंपेयर करना है क्या चेंजेस हुए हैं सोसाइटी का फ्रॉम ऋग वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक, सोसाइटी एंड इकोनॉमी का फ्रॉम ऋग वैदिक टू लेटर वैदिक। नाउ एक और फॉर्मूला मैं अप्लाई करता था अपने मेंस में। मैं सोचता था, तो हमें पता है मेंस कहाँ से कैसे लिखता है, वी नो द बेसिक स्ट्रक्चर। एक इंट्रोडक्शन होता है, एक बॉडी होता है, एक कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन शुड बी रेलेवेंट, कंक्लूजन शुड बी रेलेवेंट एंड फ्यूचरिस्टिक, होपफुल, एस्पिरेशनल, ये सब होना चाहिए, ये पता है हमें। जो बॉडी होता है उसमें हम लोग कुछ एक पर्टिकुलर डिमेंशन खोलते हैं, उसमें 1 2 3 4 करके पॉइंट्स लिखते हैं। फिर एक और डिमेंशन खोलते हैं, 1 2 3 4 करके पॉइंट्स लिखते हैं। चीजें ऐसे करके हम स्ट्रक्चर करते हैं अपना आंसर, एक जेनेरिक आंसर। नाउ ये जो मैं बोल रहा था डिमेंशंस, कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा कोई भी से अर्बन फ्लड्स के बारे में, अर्बन फ्लड्स के बारे में वो पूछा, तो हम एक डिमेंशन बोलते हैं कि क्या कॉजेज है। फिर थर्ड अगर लिखते हैं क्या इम्पैक्ट है, और फोर्थ लिखते हैं क्या वे फॉरवर्ड है। ऐसे करके हम 3 डिमेंशन यहाँ पे खोलते हैं। सिमिलरली मेरा स्ट्रैटेजी ये था, मेरा फॉर्मूला ये था दैट 10 मार्कर क्वेश्चन जो है 150 वर्ड्स, उसमें आई वुड वांट टू ओपन 2 डिमेंशंस। तो 2 डिमेंशंस के मैं पॉइंटर्स लिखूंगा, 4 5। एंड सिमिलरली 15 मार्कर्स में मैं 3 डिमेंशंस खोलूंगा या 3 एरियाज खोलूंगा, या तो कॉजेज, इम्पैक्ट्स एंड वे फॉरवर्ड वैसे करके, और उनके पॉइंटर्स बनाऊंगा। दैट वाज अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी दैट आई चोजन एंड दैट आई हैड अप्लाइड टू ईच ऑफ माय आंसर्स इन मेंस दिस ईयर। सो यहाँ पे हम अगर देखें, अब क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ये 2 और 3 वाले 10 मार्कर्स में 2 खोलेंगे और 3 मार्कर्स में 3 खोलेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे ये 2 डिमेंशन कौन से खुलने हैं, दैट बिकम्स वेरी एविडेंट फ्रॉम द क्वेश्चंस। बट कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जहाँ पे इतना एविडेंट नहीं होता है, हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। तो यही पूरा ट्रिक है। जैसे इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऋग्वेदिक पीरियड वाला, इट इज वेरी एविडेंट कि 2 डिमेंशन कौन से खुलने हैं। पहला डिमेंशन होगा सोसाइटी में क्या चेंजेस हुए हैं, और दूसरा डिमेंशन होगा इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस, राइट। तो यहाँ पे ये दूसरा 2 डिमेंशन हो गए। तो वी बी इन दिस पर्टिकुलर सेशन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस, जिससे हमें पता चल जाएगा कि दोज क्वेश्चन जहाँ पे इट इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन से डायरेक्शन खोलना है वो कैसे एड्रेस करेंगे, और जहाँ पे इट इज नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो कैसे एड्रेस करेंगे। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे वी कैन टेक दिस अप, एक सोसाइटी के बारे में लिखेंगे और एक इकोनॉमी के बारे में। नाउ अगेन 2 तरीके से हम लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं पैराग्राफ वाइज में कि चेंजेस, एक हेडिंग दे दी, चेंजेस इन सोसाइटी फ्रॉम ऋग वैदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। ये हो गया आपका हेडिंग। मैं क्या करता था, ये जो बड़े हेडिंग होता है मैं ये बॉक्स कर दूंगा, और ऐसे करके हेडिंग दे दिया बॉक्स करके। जिससे बॉक्स करने से क्या होता है ना, जो इवेल्युएटर है उनके आंखों में उभर के आता है, इट बिकम्स वेरी विजिबल टू द इवेल्युएटर। तो मैं बॉक्स कर देता था, और उसके बाद मैं तो इसमें क्या करते हैं, बॉक्स कर दिया और फिर हमने 4 5 पॉइंट लिख दिए कि सोसाइटी में क्या चेंज हुआ, 1 2 3 4। सिमिलरली इकोनॉमी का एक बॉक्स, एक हेडिंग बॉक्स कर दिया, और फिर 1 2 3 4 कर दिया। हियर आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट वन थिंग अगेन, कि मेंस आंसर राइटिंग में लाइक आई सेड 1 मिनट होता है इवैल्यूएटर को चेक करने के लिए। इसलिए वी वांट टू मेक थिंग्स इजी फॉर द, दैट इज बाय जो हेडिंग, सब हेडिंग है उसको हम अंडरलाइन करेंगे, कुछ कीवर्ड को अंडरलाइन करेंगे, जिससे 1 मिनट में वो पूरा टेक्स्ट तो नहीं बताएंगे, बट एटलीस्ट अंडरलाइन मैटर जो है वो पढ़ ले तो उनको समझ आ जाएगा कि स्टूडेंट नोस, स्टूडेंट हैज रिटन द गुड स्टफ फॉर द रिक्वायर्ड नीडेड, जो चाहिए था वो डिमांड एड्रेस किया। तो ये हम अंडरलाइन अगर करते हैं, इट बिकम्स इजियर फॉर द लर्नर। तो ऐसी ऐसी चीजें करके वी ट्राई टू फेच मोर मार्क्स। तो यहाँ पे हम लोग या तो पैराग्राफ, सॉरी, पॉइंटर्स में लिख सकते हैं, या हम टेबल बना सकते हैं कि एक टेबल बना दिया ऋग्वेदिक एंड लेटर वैदिक में, और फिर उस टेबल के अंदर 2 सेक्शंस लगा दिए। एक सेक्शन लगा दिया सोसाइटी का, उसमें कंपेयर कर दिया, और सेकंड हो गया इकोनॉमी का, उसमें कंपेयर कर दिया। दैट इज अनदर रिप्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन बेटर हो। नाउ पॉइंटर्स में लिखना इज द नॉर्म। हम मैक्सिमम क्वेश्चंस में सब जगह पॉइंटर्स में ही लिखेंगे, बट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है टू ब्रेक द नॉर्म, जहां हम नॉर्म से अलग कुछ एक अलग रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, एक अलग स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। ये कुछ कुछ ही अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। नाउ व्हाट आई फील एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज
what I would suggest is जहाँ पे आपको ऐसा opportunity मिल रहा है that you can go against the norm and choose a different way of representation, like मैं जो बोला tabular form अभी जो कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा ना, एक आपके आंसर में मोनोटोनस, आपके पूरे आंसर स्क्रिप्ट लिखा, आपका आंसर पेपर है, उसमें मोनोटोनिसिटी नहीं है. कभी कुछ कभी आंसर्स ऐसे लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं, कभी टैबुलर फॉर्मेट में हो गया, फिर कभी आप फ्लो चार्ट बना दिए, तो वो एक, इसलिए आंसर में मोनोटोनिसिटी अगर नहीं रहेगी आपके स्क्रिप्ट में, तो अगेन इवैल्यूएटर को पढ़ने में अच्छा लगेगा एंड दैट माइट अगेन फेच यू. So we'll dive on to this question. So firstly, we will talk about the introduction. So introduction is that the Vedic age, मतलब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है later Vedic period and early Vedic period. तो इसके बीच में अगर क्वेश्चन है, so we can talk about in the introduction just a brief introduction कि exactly early Vedic period क्या है and later Vedic period क्या है, and I feel that is a very simple and that is a very appropriate introduction. कि आप बोल दो कि Vedic age जो है that is divided into two parts, early और Rig Vedic period and later Vedic period. तो अर्ली और ऋग वैदिक जो है उसमें टाइमलाइन दे दिया है 1500 BC एंड लेटर वैदिक पीरियड पर 1600 BC. इसमें आप या तो यहाँ यहीं पे आप सोच सकते हो अपना इंट्रोडक्शन को, या एक और आंसर दे, एक और पॉइंट डाल दिया गया है यहाँ पे कि इनिशियली जो आपका वैदिक पीरियड था, दैट इज द अर्ली वैदिक पीरियड, दैट वाज इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, पंजाब एंड अफगानिस्तान. And the Vedic society gradually, जो later Vedic के time पे, it shifted eastwards towards the Gangetic coast. So I believe that is a very short, sweet and crisp introduction. बस it's setting the stage कि आपका answer question का demand क्या है. So after that we move into the body. The body में there are a couple of things. So यहाँ पे हमने जो मैंने पहला point बोला था, we are writing in a simple point wise manner. So again body में we will write changes in society और उसको box कर देंगे, उसके बाद point 1 लिखेंगे. Now question आता है that should I write point 1 2 3 4 or should I write it numeral bullet points, क्या ज्यादा अच्छा रहेगा? कोई स्टूडेंट कुछ करता है, कोई स्टूडेंट कुछ करता है. What I feel, what I have learned and what I would suggest is instead of bullet points I would suggest कि आप numbers use करो 1 2 3 4. क्योंकि once again going back to the mentality of the evaluator, इवैल्यूएटर के पास टाइम नहीं है, उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा आपका आंसर चेक करने में, एटलीस्ट वो देख पाएंगे आप अगर न्यूमरल्स यूज कर रहे हैं कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे, कितने सब हेडिंग में कितने पॉइंट्स लिखे. आप वो देखेंगे कि 4 पॉइंट्स लिखे, चलो ठीक है 4 पॉइंट्स लिखे, मतलब कुछ ना कुछ लिखा होगा कैंडिडेट ने, एस्पिरेंट ने, और उसके हिसाब से मार्क्स दे देंगे. बट अगर आप बुलेट पॉइंट्स ले रहे हैं, यू आर मेकिंग इट हार्डर फॉर द इवैल्यूएटर टू अंडरस्टैंड कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे, डू यू इवन नो कितना लिखना है, क्या लिखना है वगैरह. So it becomes more difficult. इसलिए I would suggest that writing numbers 1 2 3 4 is the better way of representing. Again, एक दो questions में you can use bullet points to break the monotonicity, but मैं नहीं किया. I was always provided the feedback that numerals or numbers, numbered points are better. So that's what I did. So again, ये तो structure हो गया. Coming back to the content. So changes in society क्या हुआ? So Rig Vedic or later Vedic period में there was a decline in women's status. We know that early Vedic period में women had a greater impact or greater role in society. Women का participation होता था आपके tribal assemblies में, सभा समिति, ये सब में women participate करती थी. But and we had women who were educated. There were women female philosophers. अभी मुझे याद नहीं आ रहा, but there was a very famous female philosopher at that period as well. लोपामुद्रा गार्गी. Lopamuddra. Yes, Gargi Lopamuddra. Okay, yes. So क्या हुआ कि there was, but starting from the later Vedic period, there was a decline in women's status. Women का जो participation था assembly में, सभा समिति में, वो गिरने लग गया. They got very limited. They started getting limited to private sphere only. They started losing access to education. So that was a change in society. तो society की बात करें है, अदर चीजेस, कल्चर आ सकता है, ये सब सोसाइटी वाली बात है. तो वर्ण सिस्टम, सेकंड पॉइंट इज वर्ण सिस्टम गॉट मोर रिजिड इन द लेटर वैदिक पीरियड. लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम बिकेम मोर रिजिड, हेरिडिटरी कास्ट आने लग गए, अनटचेबिलिटी आने लग गया और ज्यादा.
जो वर्ण सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ऐसे करके जो सोशल इंटरकास्ट या सोशल मोबिलिटी है वो कम होने लगी. ब्राह्मण से क्षत्रिय दे गॉट हायर स्टेटस, शूद्रस बिकेम अ डिस्टिंक्ट सर्वेंट क्लास. ये सब होने लग गया. आपका जो ओरिजिन ऑफ कास्ट है, एज मेंशन्ड इन मनुस्मृति, कि जो ब्राह्मण है उनके सर से ब्राह्मण्स आए हैं, उनके आर्म से क्षत्रिय आए हैं, वैसे करके जो ये पूरा हायरार्की बना था, दैट स्टार्टेड गेटिंग मोर प्रोमिनेंट एंड एक्सेप्टेंस. तो ये वर्ण सिस्टम डिजिट होने लगा. दैट इज another मेजर चेंजेस. थर्ड इज गोत्र सिस्टम आने लग गया. तो गोत्र सिस्टम में भी बेसिकली we know what the Gotra system is. Gotra system signifies common ancestor. तो later Vedic period में Gotra system emerge होने लग गया, which prevented marriage within the same lineage. तो गोत्र exogamy follow करने लग गया कि same गोत्र में शादी नहीं करनी. So that is also a change that started happening in society. Now, fourth point is that new concepts, further newer concepts, जैसे आश्रम, ये 4 आश्रम है, आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास. ये वाले चीज आने लगे. पुरुषार्थ, पुरुषार्थ is the goals of life. People who are following all the 4 ashrams, these kind of things, who are following the varna system, ये सब चीज recognize होने लग गए. रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, यज्ञ जो होते थे वो बढ़ने लग गए. ब्राह्मण्स और ज्यादा पावरफुल होने लग गए. दे बिकेम कस्टोडियंस ऑफ रिलीजियस राइट्स. तो ये इंपॉर्टेंस इनका ब्राह्मण्स का बढ़ने लग गया. एंड ये सब जो नए नए कॉन्सेप्ट है ज्ञान है. किंगशिप में चेंज हुआ. दैट इज द फोर्थ पॉइंट. किंगशिप बिकेम हेरिडिटरी. रिचुअल्स लाइक राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय, ये सब यज्ञ होने लगे. एंड इट एलिवेटेड रॉयल पावर. तो एक सोसाइटी को फ्रैगमेंट करने लग गए. ट्राइबल असेंबली, जहाँ पे जो ट्राइबल असेंबलीज हैड अ मोर डेमोक्रेटिक आउटलुक, वो कम होने लग गया. एंड मोनार्की स्टार्टेड राइजिंग. इससे बाद द नेक्स्ट थिंग वाज द राइज ऑफ महाजनपदस. तो एक ग्रेजुअल हमें चेंज दिख रहा. देयर वाज अ वीकनिंग रोल ऑफ ट्राइबल असेंबलीज लाइक सभा एंड समिति. एंड वी आर सीइंग इसके साथ साथ देयर इज अ शिफ्ट. एक और पॉइंट है, देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम अ ट्राइबल पैस्टोरल सोसाइटी. पहले इट वाज अ पैस्टोरल सोसाइटी, हंटर गैदरर वाला कल्चर था ज्यादा. अब इट बिकेम मोर सेटल्ड एग्रेरियन सोसाइटी. तो ये सेटलमेंट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब स्टार्ट हो. तो दीज आर द सोशल चेंजेस. तो लाइक वी सेड डिस्कस बिफोर, या पॉइंट्स में लिख सकते हैं या टैबुलर फॉर्मेट में लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज इकोनॉमी में चेंजेस. इकोनॉमी में चेंजेस हुए दैट एग्रीकल्चर बिकेम मोर डोमिनेंट. आयरन टूल्स, अब क्या हुआ, आयरन का आविष्कार हुआ. आयरन टूल्स बनने लगे, जिसको हम बोलते हैं कृष्ण आयास. तो आयरन टूल्स जब आने लगे, सो वी स्टार्टेड क्लियरिंग फॉरेस्ट्स. नाउ वी स्टडीड इन द इंट्रोडक्शन सेल. यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो था, यहाँ पे हमने देखा था दैट इनिशियली ये जो ऋग वैदिक पीरियड था नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में था, और लेटर वैदिक पीरियड ये आया गैंजेटिक प्लेन्स में. पहले क्यों नहीं आ पाया? बिकॉज पहले गैंजेटिक प्लेन्स पे ना बहुत थिक फॉरेस्ट हुआ करते थे, और थिक फॉरेस्ट आपके क्रूड जो स्टोन वाले टूल्स हैं उससे नहीं कट सकते. बट बाद में जब आयरन आने लग गया, आयरन टूल्स बनने लगे, कृष्ण आयात बनने लगे, देन उन टूल से दे कुड स्टार्ट कटिंग द फॉरेस्ट दैट वर देयर इन द गैंजेटिक प्लेन्स. एंड दैट इज व्हाई सोसाइटी स्टार्टेड मूविंग ईस्टवर्ड. तो एक्सपेंशन हुआ एग्रीकल्चर का इनटू द गैंजेटिक प्लेन्स. सेकंड, आपका कैटल रियरिंग गिरने लग गया. लाइक वी डिस्कस, ये पॉइंट हम इकोनॉमी में बोले हैं, ये हम सोसाइटी में हमने पहले डिस्कस किया था, इकोनॉमी में डिस्कस किया, व्हाटएवर. देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम पैस्टोरल टू सेटल्ड लाइफ. कैटल रियरिंग की जगह आप तरह तरह के नए नए वोकेशंस आने लग गए. सर्कुलस एंड ट्रेड इंक्रीज. तो बिकॉज एग्रीकल्चर बिकेम सो वाइड स्प्रेड, एग्रीकल्चर इतना बढ़ने लग गया, सो जो पहले सबसिस्टेंस एग्जिस्टेंस था वो चेंज होके ट्रेड आने लग गया, क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन होने लग गया. प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, टैक्सेस का कॉन्सेप्ट आया, जो कि पहले नहीं था, वॉलंटरी था. अभी टैक्सेस कहीं ना कहीं इम्पोज होने लग गए, बलि, भाग, ये सब चीजें. एक फॉर्म ऑफ करेंसी का भी जिक्र है डिफरेंट वैदिक टेक्स्ट में, कॉल्ड निष्ठा. तो ये भी आने लग गया. सो वी थॉट दैट करेंसी फॉर्म ऑफ ट्रेड भी डेवलप होने लग गया. After that, we have also seen the growth of artisanship. That pottery styles like printed graveware, PGW, ये सब आने लगे. So तरह तरह के नई नई types of jobs. We've seen that अब धीरे धीरे करके टैक्स कलेक्टर्स आएंगे, priests को हमने देखा है, पेंटर्स, पॉटर्स, कुछ
metal workers, metal smiths, ये सब type के different jobs आए. So there was a growth of artisanship. So these are the changes in economy. So again, ये points में लिख सकते हैं या tableau format में लिख सकते हैं. So these are the two dimensions that we have to open in this answer, and we have opened them. Now the thing is, we have to move to conclusion. खत्म हो गया 10 मार्क में, इससे ज्यादा नहीं लिखा है. तो कंक्लूजन में यहाँ पे लिखा है, as historian Romila Thapar notes, these transformations mark the rise of a stratified agrarian society, laying the foundation for Mahajanpadal early stage. तो यहाँ पे we have mentioned Romila Thapar's note, but it is very difficult for us to have a note for every such answer. So we can skip if we want to. और हमें अगर नहीं पता रोमिला थापा वाली बात हम स्किप भी कर सकते हैं. अगर ऐड करें तो अच्छा है, नहीं भी ऐड करें कोई बात नहीं. हम डायरेक्टली बोल सकते हैं दैट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, कि ये चेंज क्वेश्चन का चेंज के बाद कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि ये क्वेश्चन रेलेवेंट क्यों. ये क्वेश्चन रेलेवेंट है क्योंकि ये चेंज इंपॉर्टेंट था. ये इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि इस चेंज की वजह से आगे आए हमारे पास महाजनपद इन अर्ली स्टेज, एंड दैट स्टार्टेड द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. तो that is what this conclusion and ideal conclusion should be, कि भाई बोला है कि ये अब धीरे धीरे करके आने लग गया stratified agrarian society, महाजनपद अर्ली से चीजें माने. So that is the first question. So we move on to the next question. So the next question says that it asks about CAD. CAD का so ये आपका CAD का ड्यूटी के बारे में क्वेश्चन है. That CAD का role is not merely to ensure legality of expenditure but also frequent. तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं. कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एंड वी हैव टू गिव आवर कमेंट्स, गिव आवर अंडरस्टैंडिंग. तो these again we got the question, we see it as 10 marks, 150 words. Now we will look at how do we break this question, what are the different dimensions. Now there could be multiple, क्योंकि इसमें इतने डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है कि क्या डिमेंशन में खोलना है. सो there are multiple ways we can analyze and make our own two dimensions. What we can do, what are the different options? जैसे हम एक बोल सकते हैं कि has can or ways the CAD ensures legality of this. So that is first point, हम question को justify करें. And second point पे हम लिखेंगे कि कैसे CAD propriety ensure करेगा expenditure. So that is the second part. I feel that a more rounded answer could be जहां पे हमने फर्स्ट डिमेंशन लिख दिया कि कैसे कैट लीगैलिटी इंश्योर करता है, सेकंड पार्ट में लिख दिया कैसे कैट प्रोप्राइटी इंश्योर करना चाहिए कैट को, और थर्ड पार्ट में हम लिखेंगे कि क्वेश्चन पूछा क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैट प्रोप्राइटी इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे चैलेंजेस इन इंश्योरिंग प्रोप्राइटी इफ वी वांट टू. और क्योंकि ये चैलेंजेस वाला पार्ट इज द थर्ड डिमेंशन इन अ 10 मार्क क्वेश्चन, तो हमने बोला था 10 मार्क में सिर्फ दो डिमेंशन लिखना है. तीसरा डिमेंशन अगर आ गया तो तीसरा डिमेंशन अगर हम लिख रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे उसको एक टैबुलर फॉर्मेट में, एक अलग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना के, एक हेडिंग डाल के, एरोस खींच के, वैसे करके अगर दिखाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा. क्योंकि कम स्पेस है उसमें, आप तीन डिमेंशन पढ़ेंगे उससे ज्यादा अच्छा लगेगा. अगर जो थर्ड आप एक्स्ट्रा डिमेंशन पढ़ रहे हो चैलेंजेस वाला, तो वो आप अलग तरह से रिप्रेजेंट. सो विल मूव ऑन टू द आंसर. तो आंसर में अगेन इंट्रोडक्शन में very beautiful introduction is we can talk about Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar called CAG the most important officer in the Constitution because we call them the guardian of the public purse. CAG ensure करता है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है, गवर्नमेंट एट सेंट्रल और स्टेट, आर दे डूइंग इट राइटली. तो ये इंश्योर करता है he is the or she is the guardian of the public purse. तो यहाँ पे एक और लिखा है, the CAG's mandate extends beyond mere legal compliance to include ensuring fiscal propriety. तो कैग का मैंडेट सिर्फ लीगल कंप्लायंस नहीं कि कानून फॉलो कर रहे हैं नहीं, बट इसका काम, कैग का काम ये भी है कि प्रोप्राइटी इंश्योर करें. तो ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया. बट वी कैन ऑल्सो कंसिडर अवॉइडिंग दिस सेकेंड सेंटेंस बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन, एंड वी वुड वांट कि अगर हम इस चीज को इंट्रोडक्शन में लिखने की जगह टू आवर बॉडी इसको कंक्लूड करें कि बिकॉज हम डायरेक्टली इंट्रोडक्शन में वी कैन नॉट, इट इज एडवाइजेबल कि जो क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दिया गया उसको डायरेक्टली आप पैराफ्रेज करके इंट्रोडक्शन में ना डालें, नहीं तो वो एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट बनता है.
but you have not concluded yet. You have not given your arguments yet. तो इसलिए ये स्टेटमेंट को अवॉइड कर सकते हैं. बट एनीवेज वी कैन जस्ट टॉक अबाउट कि बी आर अम्बेडकर ने बोला है कैग सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस है. हम ये भी बोल सकते हैं कि आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कैग के बारे में. 148 हो सकती है, हो सकती है हम बात. So that is a very simple introduction. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल या कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया को लेके क्वेश्चन आएगा मीन्स में, a very simple way of introducing it कि आर्टिकल नंबर लिख दो आप. दैट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे कि आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. तो ये भी कर सकते हो. नाउ वी मूव ऑन टू द बॉडी में. यहाँ पे हमने डिस्कस किया था पहला पार्ट, हम पहला डिस्कशन करेंगे किस तरह कैग इंश्योर करता है लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, कि ये एक्सपेंडिचर लीगल हुआ नहीं. तो उस पे फर्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा है. तो अगेन हमने यहाँ पे पॉइंटर्स लिखे हैं. आई वुड एडवाइज कि आप सिर्फ पॉइंटर्स ना लिखे, आप सब हेडिंग्स लगाएं, उसके बाद सब हेडिंग को एक्सप्लेन करें और ऐसे करके आप पॉइंट करें. तो कैग इंश्योर कर रहा है एक्सपेंडिचर इज ऑथराइज्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें पॉइंट वन हम क्या लिखा सकते हैं, ऐसे ही कुछ नहीं. पॉइंट वन में हम सिर्फ लिख देंगे हेडिंग में, सब हेडिंग में आर्टिकल 149, और फिर पॉइंट में लिख देंगे as per this article CAG ensure expenditure is authorized by, ऐसे करके हो सकते हैं. तो सब हेडिंग अगर लिखेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, तो इट बिकम्स मोर इजी फॉर द इवैल्यूएटर टू चेक. तो ये कर दिया. सेकंड पॉइंट इज, तो बेसिकली इस पॉइंट का मतलब क्या है कि कैग इंश्योर करता है, आर्टिकल 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कैग इंश्योर करता है जो खर्च कर रहा है गवर्नमेंट, ये कानून के हिसाब से खर्च कर रहा है. तो दैट इज द एंटायर बेसिस ऑफ कैग का लीगल एक्सपर्टीज और लीगल इंश्योरिंग दैट ये वाला पार्ट लीगल कंप्लायंस होगी. दैट इज एंटायर बैकग्राउंड. सेकंड पॉइंट क्या करता है कैग? कैग ऑडिट्स करता है ऑन द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स टू वेरीफाई कंफर्मिटी विद पार्लियामेंट्री ग्रांट्स. जो पार्लियामेंट्री ग्रांट्स हुआ है वो फॉलो हो रहा है, तो उसके लिए ऑडिट करता है, जो ऑडिट नॉर्मल होता है आपका यूनियन एंड स्टेट्स के अकाउंट्स का. और इसमें हम तो अगेन अब हम यहाँ पे आंसर अगर लिख रहे हैं, पॉइंटर्स लिख रहे हैं, तो आंसर्स को और ज्यादा वाइब्रेंट बनाने के लिए हम एग्जांपल्स डालेंगे. अगर हमारे पास कोई भी एग्जांपल है, ये अगर डालेंगे तो लगेगा कि आंसर इज मोर वेल राउंडेड एंड मोर वाइब्रेंट. तो यहाँ पे हमने दे दिया एग्जांपल कि कैग ने 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन, कोल्ड ब्लॉक एलोकेशन, ये सब फ्लैग किया था कि ये लीगल प्रोसेसेस फॉलो नहीं कर रहा है. तो ये हम हाईलाइट कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि आर्टिकल 151 के हिसाब से कैग सबमिट्स रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट और गवर्नर व्हिच आर देन टेबल्ड इन द पार्लियामेंट. ये लिख सकते हैं. इसके अलावा कैग और कैसे इंश्योर करता है लीगलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर? पैक्ट को गाइड करता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को गाइड करता है. एक स्टेटमेंट है लक्ष्मीकांत में दैट CAG is the guide, friend and philosopher of the public accounts committee. ऐसा कुछ स्टेटमेंट है. तो हेल्प करता पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को फॉर स्क्रूटिनाइजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर. एंड फोर्थली कैग डिफरेंट PSUs को भी ऑडिट करता है, इंश्योर करता है लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर. So that is how CAG ensures legality of expenditure. But now the question, जो मेन आपका क्रक्स से क्वेश्चन था कि how can CAG ensure propriety of expenditure? कि एक होता है लीगैलिटी कि आपने एक्सपेंडिचर किया है जो लीगल है या नहीं, बट एक होता है प्रोप्राइटी कि आपने एक्सपेंडिचर जो किया है क्या ये सही है, क्या ये सही जगह है हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को डालने का. लिमिटेड पैसा है हमारे पास, देश के पास, तो लिमिटेड पैसे हमारे यहाँ पे डालना क्या ये सही है? इज इट राइट? दैट इज व्हाट प्रोप्राइटी मींस. तो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स क्या है दैट प्रोप्राइटी का मतलब क्या है. यहाँ पे प्रोप्राइटी गोज बियॉन्ड लीगल ओपिनियन. प्रोप्राइटी देखता है विजडम, फेयरनेस एंड एथिक्स इन स्पेंडिंग. क्या आप सही जगह पैसे डाल रहे हो, लगा रहे हो या नहीं. सेकेंड इज कैग क्या करता है. तो कैग का जो रूल्स, जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर देखना तो है ही, बट प्रोप्राइटी ऑफ एक्सपेंडिचर, परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेंडिचर, वो भी कैग का ड्यूटीज लिस्ट में है. बट काफी बार हमने देखे हैं हिस्टोरिकली कैग lays more stress on legality of expenditure, not on propriety. तो ये करते हैं क्यों? बिकॉज प्रोप्राइटी से कुछ कुछ चैलेंजेस आते हैं जो हम आगे देखेंगे. बट कैग को प्रोप्राइटी के पावर्स भी दिए गए हैं. तो कैग कैन ऑडिट whether public money is spent in public interest and not for extravagant or avoidable purposes. जैसे यहाँ पे भी एक बहुत सुंदर एग्जांपल है, कैग क्रिटिसाइज एक्सपेंडिचर इन कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक वेलफेयर. तो एक और एग्जांपल है मनरेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट्स. कैग ने किया था, बोला कि इम्प्रॉपरली
इसमें पैसे खर्च हो रहे हैं, प्रोप्राइटी नहीं फॉलो हो रहे हैं, प्रोप्राइटी नॉर्म्स। फिर अभी रिसेंटली दिल्ली इलेक्शंस के बाद कैग ने दिल्ली पोल्यूशन ऑडिट रिपोर्ट निकाला, जो काफी टाइम से दिल्ली गवर्नमेंट के पास पेंडिंग था। तो वो रिलीज किया दिल्ली पोल्यूशन ऑडिट रिपोर्ट, और उसमें भी प्रोप्राइटी के बारे में बात किया। जैसे ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, जहाँ पे उन्होंने बोला था पोल्यूशन ऑडिट करके कि जो एयर सेंसर्स है जो प्रीवियस दिल्ली गवर्नमेंट ने लगाई थी, उनने लगाए थे पेड़ों के पास एंड मोर ग्रीन एरियाज, वहां पे लगाए हैं, which gives a diluted or a skewed response of the actual air quality. Logically and according to the rules, ये जो सेंसर है ये इंडस्ट्रियल एरियाज में लगाने चाहिए, क्योंकि वहां हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना एमिशन हो रहा है। तो ये सब कैबिनेट रिपोर्ट में हाईलाइट किया था प्रोप्राइटी के ऊपर। तो ये सब प्रोप्राइटी में मिलते तो बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स है, मल्टीपल पॉइंट्स लिखिए, मल्टीपल जगह एग्जाम्पल्स यूज करिए। फिर फाइनली ऑडिट क्या कर सकता है, क्या वैल्यू फॉर मनी ऑडिट करता है प्रोप्राइटी में, कि क्या एफिशिएंसी रहा है, क्या इकोनॉमी रहा है। तो यहाँ पे हम 3E करके एक बना सकते हैं, कैट कैन ऑडिट 3E फॉर प्रोप्राइटी, 3E करके और फिर 3 एरो कीज देंगे और मिलेंगे इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी। तो ये हुआ प्रोप्राइटी ऑडिट एक्सपेंडिचर। थर्ड पॉइंट जो मैं बोला था, जो कि मैंने आपको बोला था कि आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें कि चैलेंजेस, क्यों ये सवाल उठ रहा है कि कैट को ये भी करना चाहिए, क्योंकि कैट नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज देयर आर सम चैलेंजेस। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस, ये आप अच्छे से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसमें लिखेंगे कि क्यों नहीं करता है, बिकॉज ऐसे प्रोप्राइटी ऑडिट्स ये इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट है अभी पावर में, उस पर सवाल उठाते हैं, और इसीलिए इवन इफ कैट सबमिट्स अ रिपोर्ट, वो डिले हो जाता है, जो कि दिल्ली के केस में देखा गया था। सेकंड, देयर इज नो टाइम बाउंड प्रोसीजर ऑफ कैग रिपोर्ट सबमिशन, कोई टाइम बाउंड है नहीं, कैग रिपोर्ट सबमिट करता है और फिर कैग भूल जाता है। तो ऐसा लिमिटेशन ही नहीं है कि कैग का रिपोर्ट इस टाइम के अंदर पार्लियामेंट में टेबल होना जरूरी है, ऐसा नहीं है, इनडेफिनेट डिले हो जाता है। एंड थर्ड, कैग अपॉइंटमेंट प्रोसेस भी सेंट्रल गवर्नमेंट का। एन एग्जांपल इज आई थिंक 2013 की बात है, 2013 में एक पूरा चीज न्यूज में था, व्हेन शशिकांत शर्मा who was the defense secretary, he was appointed as CAG after his tenure got over. Now he, as a defense secretary, he had passed certain resolutions, he had passed certain or um, um, given his approval in certain cases, certain expenditure, but now as a CAG he is auditing द सेम। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो जो अप्रूवल दिए हैं उसी को खुद ही ऑडिट करना, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सब चीज के कारण प्रोप्राइटी ऑडिट में ये चैलेंज है, क्योंकि गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है, देयर इज नो इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर कैट, इसके कारण ये हो जाता है। एंड चौथा, प्रोप्राइटरी ऑडिट करना इज वेरी सब्जेक्टिव, उसके लिए अलग एक्सपर्टीज चाहिए होती है, सब्जेक्टिविटी होती है एज कम्पेयर टू जो लीगल ऑडिट, क्योंकि लॉ में लिखा है, फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट्स यस और नो क्वेश्चन। बट क्या ये प्रॉपर है या नहीं, दैट्स वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तो इसी सब्जेक्टिविटी के कारण ही चैलेंज। तो दिस वुड बी अ मोर वेल राउंडेड वे ऑफ आंसर। एंड लास्टली हम वे फॉरवर्ड, अगेन वे फॉरवर्ड लिख कंक्लूड कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड क्योंकि हमने ऑलरेडी 3.48 10 मार्क्स में, तो वे फॉरवर्ड को ही हम कंक्लूजन में अगर डाल दें, दैट कुड आल्सो बी डन। वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं, अगर हम कंक्लूजन में नहीं डाल रहे, अलग से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वी शुड फॉलो सेकंड ARC एंड पैट रिपोर्ट्स, जहां पे लिखा गया है दैट देयर शुड बी ग्रेटर ऑटोनॉमी, रियल टाइम ऑडिट्स एंड डिजिटल ऑडिट टीम्स। तो डिजिटली होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ये सब बोला गया है। सिमिलरली वी नीड टू स्ट्रेंथन कैट्स फॉलो अप मैकेनिज्म की टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स वगैरह, कैग का रिपोर्ट पे फॉलो अप ले कि क्या हुआ, एक्शन टेकन वगैरह वगैरह। पब्लिक डिसेमिनेशन ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स, तो पब्लिक में ये टेबल करना चाहिए, पब्लिक को रिलीज करना चाहिए कैग रिपोर्ट्स, तो इट कैन एनहांस अकाउंटेबिलिटी। एंड लाइक वी सेड बिफोर, ये टाइम बाउंड नहीं है कैग का रिपोर्ट सबमिशन, तो उसको भी टाइम बाउंड करें, दैट शुड आल्सो बी अ बेस। फाइनली कंक्लूड करते हुए वी कैन गिव अ गुड एग्जांपल्स ऑफ different countries like UK and Canada. UK में we have the National Audit Office. Canada में we have Auditor General. So they do performance and propriety audits along with legislative oversight. ये तीनों करते हैं और काफी प्रोएक्टिवली करते हैं तीनों। तो हमारे कैग को भी ये करना चाहिए, क्योंकि उनके पास पावर्स तो है, तो क्यों ना करेंगे। India must align with such global best practices to strengthen
fiscal discipline and democratic accountability. So this is, like we said, conclusion should be futuristic, aspirational, hopeful. तो ये हमने दो बेस्ट केस बेस्ट प्रैक्टिस का एग्जांपल दिया और एक होपफुल का कंक्लूजन. So that I feel is a very well-rounded conclusion. Now we'll move on to the third question. Now, what are the causes for persistent high food inflation? क्यों हो रहा है high food inflation? ये question है, and question is comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation. Again, question पढ़ा हमने, अब हमें दो पॉइंटर्स करेंगे, दो डिमेंशन. पहला डिमेंशन डायरेक्ट कॉजेस पूछा है, क्यों पर्सिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन है, ये हम लिखते हैं, ठीक है. सेकंड डिमेंशन इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई. तो इफेक्टिवनेस में अब दो चीज होती है, हमें लिखना है कि इफेक्टिव है या नहीं. तो इसमें दोनों पॉइंट्स लिखना है और फाइनली कंक्लूड करना है या नहीं. तो इसमें लिखना होगी किस एक्सटेंट तक ये मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का इफेक्टिव, व्हाट आर द किस हद तक वो इफेक्टिव है, क्या क्या वो चीजें हैं जहां पे ये मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का शॉर्ट फॉल्स शॉर्ट और इट इज नॉट इनफ. तो ये हमें, तो यहाँ पे भी या तो हम तीन पॉइंट्स को लें या हम पहला पॉइंट को कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन लिख देंगे और सेकंड पॉइंट में हम टैबुलर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, टेबल बना के कि इफेक्टिवनेस में स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऐसे करके लिख सकते हैं. दैट इज, इसमें हम दो ही डिमेंशन खोलेंगे और वो एक अलग अगेन लाइक आई सेड एक अलग वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो सकता है. तो दैट माइट कंफ्यूज योर थॉट्स. अगेन क्वेश्चन पूछा है इन्फ्लेशन के बारे में, पर्सिस्टेंट फूड इन्फ्लेशन के बारे में, तो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है या हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फूड इन्फ्लेशन क्या होता है. तो दैट इज अ वेरी सिंपल वे, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू इंट्रोड्यूस. क्वेश्चन में से एक कीवर्ड उठा लो और उसको डिफाइन कर दो. दैट इज योर सिंपल वे ऑफ इंट्रोड्यूस. सो इन्फ्लेशन रेफर्स टू सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये धीरे धीरे करके आपका प्राइस लेवल बढ़ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का. दैट इज इन्फ्लेशन. दैट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन. नाउ वी कैन, यहाँ पे क्या किया गया है कि इन्फ्लेशन का डिफाइन किया गया, उसके बाद फूड इन्फ्लेशन को डिफाइन किया गया. ये फूड इन्फ्लेशन क्या है? फूड इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन फॉर फूड आइटम्स. नाउ फूड इन्फ्लेशन इज पर्टिकुलरली स्टिकी इन इंडिया. मतलब ये स्टिकी है, मतलब इट एग्जिस्ट और इट इज फाउंड थ्रू आउट परसिस्टेंट, कि काफी टाइम ये रहता है. इट इज अ नॉर्म. ये हमेशा दिखता है कि फूड इन्फ्लेशन इज always at a high level. It often breaches, it is one of the major reasons for RBI often breaching the tolerance band of 6%. RBI का हमें पता है इन्फ्लेशन, उसको मैंडेट दिया गया है इन्फ्लेशन कंट्रोल करे देश का एट इकोनॉमी का एट 4% प्लस माइनस 2%, मतलब 2 से 6% विंडो के नीचे इन्फ्लेशन रखें. बट काफी बार ये जो इन्फ्लेशन है हमारा 6% ऊपर जाता है. वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दैट इज फूड इन्फ्लेशन विच इज वेरी स्टिकी. वो हमेशा रहता है. हम कभी ऐसा नहीं सोचते फूड इन्फ्लेशन कम रहेगा या कंट्रोल में आ जाएगा, हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये हमारे कंट्रोल की काफी बार बाहर रहता है. ये बोला यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा पॉइंट डाला गया है. तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड कि अप्रैल 2024 का डेटा दिया गया फूड इन्फ्लेशन का 7.66%, ड्रिवन बाय सीरियल्स पर्सनल. नाउ ऑल्दो अगर आप ये याद कर ले बहुत अच्छा है. अप्रैल 24 का डेटा नहीं ऑब्वियसली, अप्रैल 25 का डेटा अगर आप याद करें which is more recent, that is more relevant. But I feel ये month wise inflation data या specifically food inflation data याद करना is very difficult and मतलब ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब लोग याद करें. तो अगर ये पर्टिकुलर डेटा सेट के अलावा भी इससे इसको आप अवॉइड कर दो, उसकी जगह बस ऐसे ही छोड़ दो सेकंड स्टेटमेंट के बाद, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ. बट अगर आपको याद है, नथिंग. So now we move to the first part of the question, which is causes of persistent food inflation. क्या reasons? तो reasons में हम लिखेंगे अगेन पॉइंटर में 1 2 3 4 5. तो वन is supply side disruptions. काफी बार हमारे supply side disruptions होता है, जैसे बारिश हो गई, अनसीजनल रेन हो गया, हमारा जो खाना है, जो अनाज है, जो आपके फूड क्रॉप्स है वो सड़ गए हैं और उसके कारण आपका मार्केट में सप्लाई कम हो गया, उसके कारण महंगाई बढ़ गई. या 2023 का एग्जांपल दे सकते हैं, मॉनसून इरेगुलरिटीज हुआ था काफी ज्यादा, तो उसके कारण भी फूड इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हाई था उस टाइम. क्लाइमेट चेंज के कारण भी काफी आपका जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होता है उसमें आपका फूड क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो दैट इज ऑल्सो सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन. सेकेंड इज हाई इनपुट कॉस्ट. जो फार्मर्स कल्टिवेट कर रहे हैं उनको इनपुट और उनको पैसे लगाने पड़ते हैं. अगर ये जो
सामान खरीद रहे हैं जैसे सीड, फर्टिलाइजर्स, डीजल, ये सब चीज जो फार्मर्स खरीद रहे हैं उनमें ही महंगाई हो जाए तो ऑब्वियसली फार्मर विल हैव टू ट्रांसफर दैट प्राइस, दैट कॉस्ट इनटू द फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस, एंड उसके कारण भी महंगाई बढ़ जाती है। जैसे हम देख रहे हैं ग्लोबली बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस, हम देख रहे हैं फर्टिलाइजर कॉस्ट आर इंक्रीजिंग, डीजल कॉस्ट अगेन, डीजल हमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, हमें जो क्रूड वूड है हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, डीजल कॉस्ट हमारे फार्मर्स से, तो दैट इज ऑल्सो लीड टू हाई इनपुट कॉस्ट। लॉजिस्टिक्स, आपका कोल्ड स्टोरेज, वो सबके कॉस्ट होते हैं, या अगर कुछ फार्म मैकेनाइजेशन हो रहा है तो उसके कॉस्ट होते हैं, दैट गेट ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोड्यूस। एनिमल फीड अगर ले रहे हैं तो फार्मर्स खरीद रहे हैं तो उसके कॉस्ट होते हैं, अगर मिक्स फार्मिंग कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो हाई इनपुट कॉस्ट दैट नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड इनटू द आउटपुट प्राइस, तो उसके कारण भी आपका फूड का महंगाई बढ़ जाती है। थर्ड इज लो प्रोडक्टिविटी पल्सेस ऑयल्स, अगर प्रोडक्टिविटी अगर कम है तो सप्लाई कम होगा मार्केट में, तो उसके कारण प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो हमारा ओवर द ईयर्स हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके बिकॉज ऑफ लिमिटेड R&D इन पल्सेस ऑयल सीड्स, हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, जो यील्ड है इन सब क्रॉप्स का, वो गिर रहा है। Fourthly, we are seeing structural issues. Markets fragmented, छोटे छोटे markets है, we are seeing APMC issues है, adequate storage नहीं है, ये सब के कारण भी आपकी महंगाई बढ़ जाती है। And fifthly, we have rising rural demand. तो अगर demand अगर बढ़ेगा again, prices बढ़ जाएंगे। Demand अगर बढ़ रहा है क्योंकि buyers, rural buyers are increasing. Rural में we are seeing more इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, लाइक उनके पास उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, हमने देखा है डिफरेंट। ऑल्सो भी ऐसे फूड इन्फ्लेशन, MSP बढ़ा रहा है गवर्नमेंट ओवर द इयर्स, हर बार गवर्नमेंट थोड़ा सा करके MSP बढ़ाते हैं, उसके कारण भी आपका फूड का जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाता है। हमने इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं काफी बार, क्या होता है कोई क्रॉप के लिए अगर हमारे पास डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है जिसके कारण इन्फ्लेशन हो सकता है, तो हम उस क्रॉप को इम्पोर्ट कर लेते हैं, बट हमने काफी इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन भी लगा रखे हैं, उसके कारण भी इम्पोर्ट इज लिमिटेड, और उसके कारण आपकी जो फूड इन्फ्लेशन है दैट इज। एंड लास्टली अनदर रीजन कुड बी ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन एंड होर्डिंग। काफी बार हम देखते हैं कि डिफरेंट फूड आइटम्स को स्पेक्युलेटिव होर्डिंग कर देते हैं, जैसे अभी वेरी रिसेंटली ड्यूरिंग द स्पेक्युलेशन ऑफ एन इंडिया पाकिस्तान वॉर, देयर वर न्यूज ऑन सोशल मीडिया की सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो सकता है, तो इसलिए सब लोग बैठ के चीजें जो डिफरेंट फूड आइटम्स है सब कुछ होल्ड करने लगते हैं, so that can also lead to an increase in food inflation. So there is a lack of transparent pricing, weak enforcement of anti-hoarding laws lead to artificial scarcity. We have different laws for anti-hoarding, but उनका भी implementation उतना अच्छे से नहीं हो रहा है, और उसके कारण artificial scarcity या artificial food inflation हो जाता है। So these are the different causes. Now we'll come to effectiveness. Effectiveness, like I said, there are two things we need to mention: the positives of strength and the weakness of limit. तो स्ट्रेंथ क्या है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी में? आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है, हमें पता है, हमने डिस्कस किया था, 4% प्लस माइनस 2% पे रहता है। आरबीआई एक्ट के हिसाब से आरबीआई को रखना पड़ेगा, और इससे आरबीआई को एक एंकर मिलता है, एक विंडो मिलता है 2 से 6% का, और उससे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से टारगेट करना है। तो अगर फूड इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, उसके कारण ओवरऑल इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा। तो दिस इज that is the first point. Second point is the derivative of the first point itself, कि रेपो रेट एडजस्टमेंट आरबीआई करेगा अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, जैसे कोविड के टाइम, कोविड के बाद देखा गया था, तो उसलिए आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया था। ये डेटा भी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छा है। हम ये भी कोट कर सकते हैं कि आरबीआई ने मई 2022 में 4% था रेपो रेट, उसको फरवरी 2020 मई 2022 से फरवरी 2023 में 6.5%। तो आरबीआई ऐसे रेपो रेट बढ़ाएगा जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगा। तो इट इज एन example of how RBI has been effective in controlling inflation through its monetary policy. और पॉइंट्स क्या है? कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जब निकालता है उसके साथ साथ कुछ और स्टेटमेंट्स भी देता है, और इस स्टेटमेंट से ये आरबीआई जो है एक तरह का नड्ज प्रोवाइड करती है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस मैनेज करती है, स्पेशली अर्बन कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए बोलते हैं कि आगे क्या होने वाला है।
और एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म होता है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट हमारे पास इसमें स्ट्रक्चरल इश्यूज हो रहा है, उसके कारण हमारा इन्फ्लेशन हो रहा है, तो आप प्लीज इस पे काम। दिस इज ऑल्सो व्हाट आर डूइंग। So this communication strategy is also very important and also very relevant for controlling inflation. And fourthly, RBI has liquidity management tools. तो रेपो रेट तो एक हो गया, उसके अलावा अदर टूल्स है, CRR है, SLR है, OMO है, उससे भी RBI मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। फॉरेक्स मार्केट एडजस्टमेंट करता है अगर हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, या हम अगर हमारा अगर करेंसी डेप्रिसिएशन ज्यादा हो गया है, एंड अगर डेप्रिसिएशन ज्यादा हो रहा है, देन आर एक्सपोर्ट्स बिकम cheaper but our imports become more expensive. And RBI यहाँ पे भी फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करता है कभी कभी, बिकॉज वी आर द मैनेज फ्लोट। हम RBI कभी कभी इंटरवीन कर सकता है फॉरेक्स मार्केट में, और इसीलिए फॉरेक्स मार्केट एडजस्टमेंट से RBI हेल्प्स इन मॉडरेटेड इंपोर्टेड फूड इन्फ्लेशन। जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं दे बिकम मोर एक्सपेंसिव, तो RBI कैन इंटरवीन इन द फॉरेक्स मार्केट। तो ये सब कुछ करता है RBI। तो दीज आर द tools that RBI has at its disposal and through which it is being effectively able to manage the food inflation. But then there are certain limitations. Limitations है कि food inflation का जो इंडिया में cause है, that is more driven by supply issues, not demand side issues. RBI अपने intervention से demand को target कर सकता है, structural issues और supply side issues है, वहां पे RBI का ज्यादा रोल नहीं है। तो फूड इन्फ्लेशन जो है इंडिया में, दैट इज सप्लाई ड्रिवन। या तो बारिश नहीं होगी तो RBI क्या कर सकते हैं, या तो क्रॉप फेल हो रहा है, रिसर्च नहीं हो तो RBI क्या कर सकता है। सप्लाई चेन बॉटलनेक है, लॉजिस्टिक्स बहुत हाई है, तो उसमें RBI कुछ नहीं कर सकता, उसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो दैट इज वन लिमिटेशन जहां पे ये इफेक्टिव नहीं है। सेकंड इज टाइम लैग मिलता है। RBI ने रेपो रेट से सपोज रेपो रेट इंक्रीज कर दिया इन्फ्लेशन मैनेज करने के लिए, बट that translation from repo rate to actual food prices takes some time. So that is not immediate. That is another limitation. Monetary transmission to actual food prices takes time, especially in rural and informal markets. Third is adverse impact on growth. अगर rate hikes बहुत ज्यादा excessive, तो it can slow credit flow to agriculture. तो RBI अगर अपना पॉलिसी यूज कर रहा है, अपना मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर रहा है और रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रेपो रेट बढ़ाने का एक डाउन साइड है कि क्रेडिट बिकम्स एक्सपेंसिव। क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, क्रेडिट टू बिजनेसेस, क्रेडिट टू SMEs, ये एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर एक्सेसिव रेट हाइक कर रहे हैं तो इट कैन स्लो क्रेडिट फ्लोस विच आर वेरी एसेंशियल फॉर सप्लाई साइड। तो इसीलिए जब RBI ने अभी 6.5 से RBI ने धीरे करके हमारा जो रेपो रेट है वो कम किया है, वन ऑफ द रीजंस इज बिकॉज RBI सेड कि इन्फ्लेशन अब मैनेज्ड है, बट वी नीड टू फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल, बिकॉज उसके भी टारगेट्स है, इसलिए हमने अपने रेपो रेट कम किया। तो वही है कि अगर बार बार रेपो रेट बढ़ाते रहे फूड इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए, तो दैट बिकम्स वेरी डेट्रिमेंटल। फोर्थ इज देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन पेरिशेबल फूड। तो RBI का अगेन जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें अगर कुछ भी करें तो कुछ कुछ फूड आइटम्स हैं जो कि पेरिशेबल है, उस पर इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज उससे कोई लेना देना है ही नहीं। कोई पेरिशेबल आइटम है जो कि कुछ दिनों में सड़ जाएगा, तो उसका प्राइस तो फ्लक्चुएट करेगा ही। इसका इन्फ्लेशन सीजनल है, जब सीजन है तो महंगाई गिर जाएगी, उसका प्राइस गिर जाएगा, जब सीजन खत्म हो गया तब उसका प्राइस बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा। तो इट कैन नॉट बी कर्व्ड बाय RBI इंटरवेंशन। जैसे 2023 में रेपो रेट हाई था, हमने देखा 6.5% पहुंच गया था, मतलब यू वुड एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन कंट्रोल, बट बिकॉज टमेटो एंड अनियन का उस टाइम क्रॉप फेलियर हुआ था या सही से रीड नहीं हुआ, उसके कारण उनका सप्लाई ड्रॉप हो गया मार्केट में। उसके कारण डिस्पाइट हाई रेपो रेट वी हैड सीन ह्यूज स्पाइक ऑफ प्राइसेस ऑफ टमेटो एंड अनियन। तो दिखा रहा है मॉनेटरी पॉलिसी कितना लिमिटेड है। उसके साथ साथ एक और पॉइंट है कि कुछ कुछ प्राइसेस एडमिनिस्टर्ड होता है, जो गवर्नमेंट सेट करता है, जैसे आपका यूरिया का प्राइस, तो ये गवर्नमेंट सेट करता है, तो उसमें RBI के इंटरवेंशन से कुछ नहीं होगा। MSP गवर्नमेंट सेट करता है, तो उसमें RBI की पॉलिसी से कुछ नहीं होगा। अगर अगर गवर्नमेंट इंक्रीज कर रहा है, अगर RBI रेपो रेट इंक्रीज कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट MSP इंक्रीज कर रहा है, तो फूड इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही। PDS सिस्टम्स, तो ये सब चीज कंसिडर होता है, तो ये सब RBI की पर्दे के बाहर है, तो इसलिए RBI का भी यहाँ पे लिमिटेशन आ जाता है। तो दिस ये सब पॉइंट्स अगर लिखेंगे तो आंसर बिकम्स वेरी मच वेल राउंडेड।
वे अहेड है, अगेन ये सब पॉइंट के बाद वे अहेड आप एक एरो की तरह आप लिख सकते हो एरोज में कि वे अहेड इज नीड टू स्ट्रेंथन सप्लाई चेन्स, सप्लाई साइड इंटरवेंशंस पर फोकस करें बिकॉज आरबीआई का लिमिटेशन है वो, एमएसपी रिफॉर्म्स करें, कोल्ड स्टोरेज पे फोकस करें जिससे आपका फूड वेस्ट कम हो, फूड वेस्ट के कारण भी आपका फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो आप डाइवर्सिफिकेशन करें, आरबीआई गवर्नमेंट का पॉलिसी को साथ में लेकर चलिए, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी शुड मूव इन टैंडम विद ईच अदर एंड नॉट अगेंस्ट ईच अदर। तो ये वाइटल है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इस पे इसको हम यूज करें, बट उसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी फिस्कल रिफॉर्म्स चाहिए, जैसे हमारे पास पीएम आशा स्कीम है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, ये सब चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करता है फूड इन्फ्लेशन को, तो ये सब करने की जरूरत है। फाइनली कंक्लूजन में, tackling food inflation is crucial for macroeconomic stability and achieving broader goals like the $5 trillion economy vision. Now, काफी answer. So this again is a very nice conclusion and a very simple way to conclude. कि कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप हमारे डिफरेंट गोल्स हम ये सब टर्म्स यूज कर सकते हैं, $5 ट्रिलियन विजन, अभी डेवलप्ड कंट्री का टारगेट है बाय 2047 बनना है, एक भारत विकसित भारत, ये सब टर्म्स लेकर आप इंक्लूड कर सकते हो। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है, $7 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है, तो ये सब हम इंक्लूड कर सकते हैं। दैट टैकलिंग फूड इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड अचीविंग ब्रॉडर गोल्स लाइक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। दैट इज अ वेरी सिंपल वे। नाउ वी मूव टू द fourth question of the day, which is for GS4. तो यहाँ पे एक कोट किया है एंड उसके बेसिस पे क्वेश्चन, तो इसके बारे में बात करेंगे। we'll read this question that it is not enough to talk about peace, one must believe in it, and it is not enough to believe in it, one must act upon it. So just to make you understand the question, ये बोल रहा है कि सिर्फ शांति पीस के बारे में बात करना ही इनफ नहीं है, हमें विश्वास करना पड़ेगा दैट इट इज पॉसिबल। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर का एग्जांपल दे तो बोथ रशिया सेम की पीस होना चाहिए, यूक्रेन से पीस होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं पीपल डू नॉट बिलीव इन इट कि all the stakeholders can come on the same table and then talk about peace. इसलिए अगर आपके पास बिलीफ ही नहीं है पीस हो सकता है, तब कैसे पीस हो? So it is not enough to talk about peace. We must believe in peace. Peace is the way forward. We have to, and सिर्फ बिलीव करने से नहीं होगा, we must act upon it. So peace के लिए also we have to take actionable steps. In the present context, the major weapon industries of the developed nations are adversely influencing continuation of number of wars for their own self-interest all around the world. मतलब ये बोल रहे हैं कि अभी देखा गया है, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आते हैं पीस और वॉर के बारे में, तो अभी देखा गया है कि दुनिया भर में बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे डेवलप्ड नेशंस हैं, उनमें बहुत सारे वेपन इंडस्ट्रीज हैं जो वॉर को यूज करते हैं एज अ प्रॉफिटियरिंग मैकेनिज्म। वॉर से उनको बहुत प्रॉफिट होता है क्योंकि वो वेपन्स बेच सकते हैं, तो उन लोग कहीं ना कहीं लॉबी कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वॉर तो कंटिन्यू होते रहे, क्योंकि उनका सामान तभी बिकेगा अगर वॉर हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर में भी बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न नेशंस डू नॉट वांट अ सीज फायर और अ ट्रूस, क्योंकि अगर वॉर कंटिन्यू होगा तब ये जो उनके वेपन्स है वो बिकेंगे, तब और ज्यादा सिक्योरिटी में लोग इन्वेस्ट करेंगे, कंट्रीज इन्वेस्ट करेंगे, तो दैट विल बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर। सो ये क्वेश्चन भी यही बोल रहा है दैट ये कंपनीज खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वॉर्स देश भर दुनिया भर में करवा रहे हैं। नाउ व्हाट आर द एथिकल कंसिडरेशंस ऑफ पावरफुल नेशंस इन टुडेज इंटरनेशनल अरीना टू स्टॉप कंटिन्यूएशन ऑफ ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट? मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेशंस को एथिकली क्या सोचना चाहिए आज की दुनिया में कि जिससे वो ये जो लड़ाई चल रहा है इसको रोक पाए। ठीक है, तो इसमें दो डिमेंशन हम क्या करेंगे, इसमें हम दो डिमेंशन, एक हम जो कि यहाँ पे हमने किया है एथिकल डिलेमास एंड राइट, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि व्हाट आर द एथिकल कंसिडरेशंस, जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है तो उसके बारे में बात कर सकते हैं, और हम बात कर सकते हैं वे फॉरवर्ड कि स्टेट्स को, कंट्रीज को आगे क्या करना चाहिए। So again, starting with the introduction. Now, in this introduction, what I feel a good way to start is we can just explain the given quote. तो यहाँ पे कोड को एक्सप्लेन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, यहाँ पे लिख सकते हैं that peace is not merely the absence of, according to the quote या according to the given quote,
Peace is not merely the absence of war, but the presence of justice, harmony, and mutual respect among nations. True peace demands both conviction and committed action. So that is the way of introduction. But what I would do is a more simple way introduce करने का कि आप बस को explain करो that in today's interconnected world, the military-industry complex of powerful nation often fuels global conflicts, sometimes under the guise of defense and strategic interests. This raises serious ethical questions regarding their responsibility in promoting peace and justice. आपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, फिर आएंगे कि क्या है ये एथिकल क्वेश्चन। तो उसके पहले हम लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट, डेटा पॉइंट यहाँ पे डाल सकते हैं दैट, और इस यहाँ पे भी हम कोड पे यूज कर सकते हैं दैट द कोड हाइलाइट्स दैट पीस इज अ मॉरल ड्यूटी, नॉट जस्ट एन आइडियल। हमारा सिर्फ बात नहीं होना चाहिए, आइडियल नहीं है, इट शुड बी चेंज इनटू एक्शन। बट ग्लोबल रियलिटी शो अ कॉन्ट्रडिक्शन। सिफरी रिपोर्ट के हिसाब से टॉप 5 आर्म एक्सपोर्टर्स यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी account for greater than 75% of global arms exports। तो इन लोग काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं आर्म्स, और इसीलिए क्योंकि ये टॉप 5 कंट्रीज 75% एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली इट मेक्स लॉजिकल सेंस फॉर देम टू सीक द कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर टू get more profits. So that is why these sales fuel prolonged conflicts in regions like Yemen, Syria, and Sudan. तो डेटा पॉइंट से काफी अच्छे तरीके से स्टार्ट किया गया है। देखेंगे क्या क्या डिलेमा होता है स्टेट के सामने, ऐसे पापुल स्टेट के सामने डिलेमा होता है कि प्रॉफिट की तरफ जाए या पीस की तरफ जाए, बिकॉज आर्म्स कंपनी लाइक आई सेड दे प्रॉफिट फ्रॉम इंस्टेबिलिटी। एग्जांपल यूएस आर्म्स देता है मिडिल ईस्ट को, और मिडिल ईस्ट में हमेशा से वी आर सीइंग एक एनवायरनमेंट ऑफ वॉर, एनवायरनमेंट ऑफ सस्पिशन, ऐसा अनसर्टेनिटी, ये सब रहता है। और हम देख रहे हैं दैट सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स ऑफ आर्म इंपोर्टर्स। इंडिया, सऊदी अरेबिया, इंडिया मिडिल ईस्ट की बात करें तो सऊदी अरेबिया बोल सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया को यूएस काफी आर्म्स एक्सपोर्ट करता है, तो फ्रॉम अ प्रॉफिट मोटिव, और इसीलिए यूएस वांट्स warfare in Saudi or in the Middle East to fight. That is one dilemma. Second is selective morality. That is nations क्या करते हैं, अग्रेशन को लाइक सामने अगर बात करें लाइक इन पब्लिक स्फीयर, सारे नेशंस बोलते हैं कि अग्रेशन नहीं होना चाहिए। इवन प्रेसिडेंट्स लाइक प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलते हैं कि नहीं, लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो, लड़ाई नहीं होना चाहिए। बट इसके साथ साथ दे आर विलिंग टू सपोर्ट allies with weapons, they are willing to undertake proxy warfare, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया एंड यूक्रेन वर्सेस सीरिया। तो ये सब सेलेक्टिव मोरालिटी कि फॉर सम नहीं होना चाहिए, बट देन बिहाइंड द सीन्स दे themselves। थर्ड इज डिलेमा इज वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी, दैट वेपनाइजेशन इंटरफेयर्स विद सेल्फ डिटरमिनेशन। तो अगर कंट्रीज, पावरफुल नेशंस वेपनाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको कि छोटे छोटे कंट्रीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि तुम लड़ो। और यहाँ पे क्योंकि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं दूसरे नेशंस को, इट इज अ वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी। तो वाई, तो दे हैव अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एथिक्स फॉर देमसेल्व्स एज वेल एज फॉर अदर्स। खुद के लिए बोलता है कि नहीं, सॉवरेनिटी होना चाहिए, सॉवरेनिटी हमारा अधिकार है, सॉवरेन होना चाहिए हम लोग, हर कंट्री को होना चाहिए। बट उसके साथ साथ छोटे छोटे कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को वो मैनिपुलेट करते हैं वेपनाइज करके, और उससे वो कंट्रीज वॉरफेयर में लड़। नेक्स्ट एथिकल डिलेमा इज ह्यूमैनिटी ने कैसे निग्लेक्ट वॉरफेयर में, वो प्रॉफिट मोटिव के चक्कर में ह्यूमैनिटेरियन इशू को निग्लेक्ट कर देते। देयर आर नो विनर्स इन वॉर, ये स्टेटमेंट भी सकते हैं। आर्म्स सप्लाई टू फैक्शंस वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स। तो डिफरेंट रेबेल फैक्शंस, सिविल वॉर होता है कंट्रीज में, अफ्रीकन नेशन को हम देखते हैं, तो वहां पे उन लोग को आर्म्स देते हैं, तो ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस मतलब सबका बेनिफिट में होना चाहिए, सबके भलाई में काम करना चाहिए, तो उसके खिलाफ है। एंड लास्टली इट्स एथिकल डिलेमा इज डिप्लोमेसी डेफिसिट, कि ये कंट्रीज जो लड़वा रहे हैं, डेवलप कंट्रीज जो लड़वा रहे हैं डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज को, तो दिखा रहे हैं कि दे डोंट बिलीव इन डिप्लोमेटिक ties, they don't believe in peaceful negotiations, they believe in weapon trade, they believe in weaponization, they believe in warfare।
एंड यहाँ पे दिखा रहा है कि ये एक एग्जांपल है कि किस तरह ये डेवलप्ड नेशंस का डिप्लोमेसी डेफिसिट, तो ये सब डिफरेंट एथिकल डिलेमास है दैट डेवलप्ड नेशंस फेस। वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, दैट स्टेट्स नीड टू Kant's universal moral law. They need to adhere to Kant's principle of categorical imperative. जहाँ पे Kant ने बोला था human dignity is categorical imperative. Human dignity सबसे important चीज है, human rights सबसे important है, और warfare अगर होगा तो human right के खिलाफ जाता है, warfare नहीं होना चाहिए. तो we need to agree and adopt to Kant and treat peace as a universal duty. We need to agree. Countries, secondly, they need to agree with Swami Vivekananda's ideas of service and selflessness. जहाँ पर उन्होंने बोला था service to man is service to God. ये सब बोला था, उनने रामकृष्ण मिशन ये सब फाउंड किया था for service to man. तो स्वामी विवेकानंद called for responsible global citizenship. We can talk about Rabindranath Tagore's values of universalism. तो ये सब हम लिख सकते हैं. We can give these examples. Ethics में GS4 में हम अगर ये सब थिंकर्स का एग्जांपल दें तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल. कीवर्ड्स यूज करें आपके जो डिफरेंट इंटेग्रिटी, एथिक्स, या वी कैन टॉक अबाउट सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, ये सब कीवर्ड्स यूज करें तो काफी मार्क्स फेच कर सकते हैं. तो वी कैन यूज दिस. तो यहाँ पे जैसे इमैनुअल कांट की बात की गई, स्वामी विवेकानंद की बात की, रवींद्रनाथ टैगोर की बात कर सकते हैं. एंड वे फॉरवर्ड में वी कैन यूज अदर एग्जांपल्स लाइक we need to encourage ethical arms trade laws. कि arms trade जो हो रहा है वो ethically हो रहा है, इन ट्रेड का रिपोर्टिंग जो हो रहा है, जो मॉनिटरिंग हो रहा है वो सही से हो रहा है. We need to invest in peace building institutions, different institutions पर फोकस करना चाहिए. यूएन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. TPNW जो है ट्रीटी फॉर प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इससे हम काम कर सकते हैं. CTBTO को एम्पावर कर सकते हैं. IAEA को एम्पावर कर सकते हैं फॉर मॉनिटरिंग ऑफ न्यूक्लियर ट्रेड. ये सब कर सकते हैं. एंड लास्टली we need to encourage dialogue and negotiation among warring parties rather than taking sides for strategic gains. जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो अभी रिसेंटली skirmish हुआ था, वहां पे both sides they did not, both sides तो नहीं बोलेंगे, but in any case India did not let any third party intervene in between, at least from their side, from our side. And हमने focus किया कि we are trying to tackle the terrorist camps, but we want to end this war. We want to engage in dialogue, negotiation among warring parties. We don't want third-party interference. We don't want proxy warfare between India and Pakistan. वो सब नहीं चाहते. तो similarly, that should be the thing that अगर आपके problems है तो आप dialogue से negotiation से resolve करें. So these are way forward. And finally, to conclude, we can give another examples like UN Arms Trade Treaty. We can talk about the demilitarization treaties, New START treaty. ये सब जो treaties हुए यूएस रशिया के बीच में, ये सब चीजों की बात कर सकते हैं. We can talk about all these. We can talk about NPT. ये सब चीजों की बात कर सकते हैं. Nobel Peace Prize to ICAN. ICAN is denuclearization initiative. तो इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया. तो ये सब एफर्ट्स को रिवॉर्ड करें, रिकॉग्नाइज करें. तो these are positive steps. Initiative for ceasefire in conflict zones. आपका ये नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में डीमिलिटराइज जोन बनाया गया है. रशिया यूक्रेन के बीच में सीजफायर की बातें हो रही है. इजराइल हमास के बीच में हुआ था सीजफायर. तो these are positive steps. However, genuine peace requires political will, requires ethical leadership by powerful nations, driven by both belief and decisive action. Very beautiful statements. So this is the way to conclude the entire thing. So I feel that ऐसे करके आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते. So I hope this brings the session to an end, and I hope I have been able to cover parts of GS 1, 2, 3, 4 and give you an understanding of how you should structure your answers, how you should go about thinking how to answer कैसे लिखें, कैसे सोचे आंसर्स के बारे में, कैसे स्ट्रक्चर करें. And also I feel that सिर्फ this is not enough. जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे, until and unless you bring yourself towards implementing all these learnings, that will not translate into an execution.
तो लाइक हमने देखा एक्शन, GS4 वाले में देखा हमने वॉरफेयर को रोकने के लिए भी एक्शन चाहिए, तो वैसे आपके GS आंसर मेन आंसर्स को भी इंक्लूड करने के लिए नीड एक्शन. You need to sit down, you need to start writing answers, you need to start writing timed answers, analyzing your answers, and then getting them checked by people and also trying to figure out how you can improve better. Structuring कैसे कर सकते हैं. So this is that need to work. I feel that there are a few doubts here. Right. Sir, so should we prepare these posts for every constitutional exam? No, there is. It's not possible that ये जो अम्बेडकर जी ने कोट किया था CAG वाला, that can be prepared for every constitutional body. ऐसा है नहीं. It's not there for every constitutional body. Popular. जैसे आर्टिकल 32 को बोला गया था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब टर्म्स दिए जाते हैं डिफरेंट बॉडीज को. तो ये सब हम अगर याद रखें, ये सब हम नोट करें, तो दैट शुड बी इनफ. इसके अलावा अगर कोर्स नहीं याद हो तो लाइक आई सेड आर्टिकल से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. आर्टिकल 148 टू 151 एक्ट की बात करता है, तो ये सब हम करें. अच्छा. Right. I hope I've been audible throughout the meeting. In case if anybody missed at any point, they can ask any doubts right now. Sir, just see some of the queries are on the chat. One Yes, sir. Yes, sir. one girl has asked, sir, just read it. Yes, sir. So there's another question. How to create such crisp heading? Often I know the answer, but struggle with heading. I think people do, and students do think कि headings बनाना बहुत मुश्किल है और headings कुछ अलग बनाना चाहिए, कुछ काफी effort लगता है. But in my opinion, headings बनाना should be a very basic and simple thing. आप जितना simple अपना heading बनाओ, question से ही verbatim question से आप keywords उठाओ, words उठाइए heading में और heading में डालिए वो words को, तो उससे और simple होगा जो evaluator है उनके लिए, और वो उनको और अच्छे से समझ आए. सर आप कुछ बोल रहे हैं? Yeah, I have one question from you. I want to ask you whether give the answer in paragraph wise or point wise. Sir, GS के लिए I would suggest, and I feel it is the practice that we should write in points, because sir, like I feel that जो evaluator है वो अगर paragraph wise पढ़ रहे हैं तो they may lose interest after a point. बट अगर मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ अच्छे से, लेजिबल हैंडराइटिंग में उभर के आ रहा है आंसर, उनको पता है मैं कितने पॉइंट्स लिखा हूँ, अच्छे से अंडरलाइन कर रहा हूँ उन पॉइंट्स को, तब इट बिकम्स इजियर फॉर द इवैल्यूएटर एंड दैट मे फेच अस मोर मार्क्स. एंड इसलिए जीएस में तो आई वुड रेकमेंड कि आप पॉइंटर्स में लिखें, 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखें, 6 7 जितना पॉइंट्स आपको अगर आ सकते हैं. स्टैंडर्ड होता है 3 4 5, लाइक 3 तो नहीं, 4 5 6 पॉइंट्स स्टैंडर्ड होता है, तो वैसे आप लिखो. तो आई बिलीव दैट इज द वे टू डू. पैराग्राफ की जगह पॉइंट्स. आपका सिलेक्शन 4th अटेम्प्ट में हुआ, ऐसा क्या था जो आप पहले नहीं कर पाए, इस बार किए, आपका सिलेक्शन हुआ? यस सर. सर आई फील दैट इस बार लास्ट टाइम व्हाट आई वाज मिसिंग आउट ड्यूरिंग माय मेंस, स्पेशली दिस वाज माय सेकंड मेंस. तो सेकंड द फर्स्ट मेंस था, आई फील दैट एक कहीं ना कहीं मैं आंसर को बेटर स्ट्रक्चर कैसे करना है उसमें मैं मिस आउट कर रहा था सर. बिकॉज सर आई फील दैट कहीं ना कहीं हम सारे एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स मेल दे रहे हैं, वी नो एंड वी आर रीडिंग द सेम इंफॉर्मेशन, वी आर रीडिंग द सेम टेक्स्ट बुक्स, वी नो द सेम स्टफ. डिफरेंस क्रिएट कर सकता है हम आंसर को कैसे रिप्रेजेंट कर, हम चीजें अंडरलाइन कैसे कर रहे हैं, बॉक्स कैसे कर रहे हैं, फ्लो चार्ट में बना रहे हैं, डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं, मैप्स बना रहे हैं जीएसटी वाले क्वेश्चंस. तो आई फील मैंने ये वाली चीजें डिफरेंशिएट की इस बार. कंटेंट आई फील कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट जो मेंस था, दोनों में कंटेंट मैंने भर भर के डाला है. पॉइंटर्स मैं काफी ज्यादा रटे इस बार, मेमोराइज किए मैंने काफी ज्यादा पॉइंटर्स और डेटा पॉइंट्स, और वो डेटा पॉइंट्स को मैंने इंट्रोड्यूस किया, जिससे आंसर्स में थोड़ा अगर बीच में नंबर्स भी दिखेगा तो एक मोनोटोनिसिटी का ब्रेक मिलता है और आंसर ज्यादा होलिस्टिक दिखता है. तो ये सब आई फील बेसिक हाइजीन पॉइंट्स है जो आपके आंसर्स को और ज्यादा एनरिच कर सकते हैं. तो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव नोटिस्ड.
I'm struggling a lot to help the aspirants to qualify prelims. ये बड़ी समस्या हो चुकी है कि प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहुत ब्राइट एस्पायरेंट है टू होम आई थिंक वो सिलेक्ट हो सकते प्री पास नहीं कर पा रहे हैं। आपकी क्या एडवाइस है प्रीलिम्स पास करने के लिए? हाउ यू थिंक प्रीलिम्स कैन बी हैंडल्ड? यस सर प्रीलिम्स में एक है आपका जीएस एंड एक है सीसैट। तो फर्स्ट इज स्पीकिंग ऑफ जीएस। तो जीएस के लिए आई फील दैट फर्स्टली इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक्स और एक होता है करंट। तो स्टैटिक में आई सीन सर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि वो पहले तो स्ट्रगल करते हैं कि इतना मटेरियल है मार्केट में, इतने सारे बुक्स हैं, हम कौन कौन सा पढ़ें। और कुछ कैंडिडेट सोचते हैं कि सारे बुक्स पढ़ लें। बट व्हाट आई वुड वांट टू सजेस्ट एंड advise the different candidates that it is important कि हम अपने जो different static resources हैं उन्हें लिमिट करें। जो बेसिक रिसोर्सेज है जैसे पॉलिटी के लिए सब लोग स्टूडेंट्स लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत रिकमेंड होता है, तो पॉलिटी के लिए मैं सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ा। rather than going for greater number of resources, I feel that same resources को अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे तो that may fetch us more marks because sir I feel that आपका रिकलेक्शन एग्जाम में आपका काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा अगर आप चीजों को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि क्वेश्चंस उन्हीं में से आते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चंस बाहर से आएंगे बट कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से ही आते हैं और वो अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप करेगा अगर आपके रिविजन ज्यादा है। तो दैट इज फॉर स्टार्टेड टू लिमिटिंग योर रिसोर्सेज एंड रिवाइजिंग द मल्टीपल टाइम्स। सेकेंडली फॉर करंट अफेयर्स मैं क्या करता था सर, एवरी डे मैं पिछले 4-5 साल से गिव और टेक एवरी डे मैं इंश्योर करता था कि डेली करंट अफेयर्स डेली पढ़ो। आई डिड नॉट यूज टू डिपेंड ऑन जो वीकली एक्यूमुलेटेड करके आता है या जो मैगजीन्स होता है उन पर मैं डिपेंड नहीं करता था सर, बिकॉज आई फील कि अगर एक साथ इतने सारे करंट अफेयर्स अगर आ जाए हफ्ते भर का या महीने भर का तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको रिटेन करना। बट अगर हम डेली पढ़े 4 न्यूज 5 न्यूज जितने भी आते हैं और उसको हम धीरे धीरे करके अपने रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाएं, अपने दिमाग को रिटेन करने की कोशिश करें, तो अब ज्यादा लोड भी नहीं होता है और इजीली हो जाता है। बट वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव, वेरी फंक्शनल एंड वेरी डेडिकेटेड कि हर दिन ये करना है। मैंने अपने लिए टारगेट सेट किया था सर कि हर दिन मैं बिना ये डेली न्यूज एनालिसिस किए मैं अपना दिन खत्म नहीं करूंगा एंड आई डिड दैट फॉर द पास्ट 5 years। तो आई वुड सजेस्ट दैट ओनली एंड सर दैट इज फॉर वेरी जीएस। फॉर नाइस। सीटैट सर आई फील प्रैक्टिस 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 यूजिंग इंग्लिश या मैथ्स जो आपका स्ट्रेंथ है और उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए। आपके सीसैट के लिए आई फील 66 जो कट ऑफ मार्क्स है वो आ जाएंगे। आपने एक प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट कितने दिए थे? सर मैं प्रीलिम्स के 35 to 40 मॉक टेस्ट दिया था स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू जून, मई जून जब मेरा पेपर था सर। एंड दैट वाज मतलब कोई जिस साल में प्रीलिम्स अटेंड कर गया था, जैसे 2022 में मैंने सही से अटेंड किया था प्रीलिम्स और 2024 में सही से अटेंड किया था। तो जैन से जून तक मैंने लगभग 35 से 40 मॉक टेस्ट दिए। उसके अलावा सर मॉक टेस्ट के अलावा भी घर पे बैठ के खुद से एमसीक्यू सॉल्व करता था सर। तो संडे संडे अगर मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो हर एवरी डे ऑफ द वीक आई यूज्ड टू सिट डाउन एंड डू एटलीस्ट 150 to 200 MCQs ऑनलाइन। तो आपने बहुत मॉक टेस्ट दी तब तो। हाँ इफ यू सर, ऐड एक तो टेस्ट एनवायरनमेंट इफ में यू ऐड देना और दिस, अगर मैं आपका ये ऐड कर दूं तो 35-40 आपने वो दिए और 150 तो आपका मतलब आपने करीब 70-80 मॉक टेस्ट दी तब तो आपने। यस सर। ओके। सर एक तो मॉक एनवायरनमेंट में मॉक टेस्ट में कंसिडर करूंगा, नहीं तो ये जो दिन के 150 से 200 क्वेश्चन ये तो सिर्फ प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्विंग हो गया सर। ये मॉक टेस्ट नहीं कंसिडर करूंगा मैं, बस एक बैठ के एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट एनसीईआरटी? Sir, my opinion is that NCERTs form the basic fundamental of preparing for UPSC. मैंने भी NCERTs पढ़े हैं बट मैंने NCERTs जो डायरेक्टली बुक से पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ा है और मैं भी रेकमेंड नहीं करता हूँ और स्टूडेंट्स को कि आप NCERTs खरीद के NCERTs बुक से पढ़ें। रैदर ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको काफी जगह मिल जाएंगे जहाँ पे NCERTs को एक्सप्लेन करते हुए जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन किया गया है, फटाक से भगाया गया है। आई थिंक दैट शुड बी गुड इनफ फॉर अस टू डेवलप आवर बेसिक्स। एंड एक बार वो बेसिक्स बनता है, बिकॉज एनसीईआरटीज आर नॉट द एंड गेम। एनसीईआरटीज सिर्फ पढ़ के जाने से नहीं होगा, वो सिर्फ हमारा फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हमें जो जो स्पेशलाइज्ड बुक्स है, एडवांस बुक्स है वो पढ़ने पड़ेंगे। तो इसलिए अगर आप जल्दी जल्दी एनसीईआरटीज खत्म कर लेते हैं
उसके बाद आप इंटरव्यूज कर पाएंगे, मॉक टेस्ट में घुस पाएंगे. तो दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. एंड अनलेस अगर आप कॉलेज में है, आपके पास टाइम है, तब आप आराम से बैठ के स्टार्ट कीजिए. वन ओपिनियन इज दैट लक्ष्मीकांत की बुक जो है वो सफिशिएंट नहीं रह गई है. आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे? सर मेरे लिए तो पॉलिटी का ओनली सोर्स लक्ष्मीकांत था. तो आई वुड नॉट एग्री टू दैट सर एट ऑल. लक्ष्मीकांत में सर, क्योंकि सर पॉलिटी के काफी क्वेश्चंस, लाइक 100% नहीं बोलूंगा, ठीक है सर, 90% क्वेश्चन तो कंसेप्चुअल होते हैं. और वो कॉन्सेप्ट लक्ष्मीकांत का मल्टीपल रीडिंग से आप क्लियर कर सकते हैं. वो डेफिनेटली आप कर सकते हैं करेक्टली मार्क. और कुछ कुछ मॉक टेस्ट में अगर मुझे कोई अलग इन्फॉर्मेशन मिला जो लक्ष्मीकांत में नहीं है, तो वो मैं अपने बुक में अलग से लिख लेता था, जिससे मैं जब रिवाइज कर रहा हूँ तो वो कुछ कुछ पॉइंटर्स जो मुझे डिफरेंट टेस्ट में या डिफरेंट इंस्टीट्यूट पर करके मिला है, वो मैं रिवाइज कर. दैट वाज. आप बड़े प्राइम इंस्टीट्यूट पढ़े हो, IIT कानपुर आपने किया, फिर IIM कलकत्ता किया. ये एक बड़ा सवाल रहता है कि कितने घंटे रोज पढ़ने चाहिए. ये सवाल बहुत से लोग करते हैं. आप भी जब आपने स्टार्ट किया होगा, आपने सोचा होगा कि आपका क्या एडवाइस, कितना रोज पढ़ना चाहिए? सर सर काफी चीजों से क्वेश्चन पूछे मुझसे. एंड मेरा आंसर सिंपल होता था दैट मैं अभी घर पे बैठ कर पढ़ रहा हूँ. आई एम नॉट वर्किंग, आई एम नॉट एम्प्लॉयड. तो देर इज नो राइट आंसर सर. मतलब माई आंसर वुड बी कि आप घर पे रहते हो, आपके पास कुछ और काम नहीं है, तो देयर इज नो एंड टू इट. आप जब भी फ्री हो, आप अपने डेली एक्टिविटीज के बाहर हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप मतलब दैट इज ऑल द टाइम यू हैव टू स्टडी. सो आप दिन के आप 14 घंटे निकाल लो, आप 12 घंटे निकाल लो, 10 घंटे निकाल लो किसी दिन. बट इट्स ऑल अबाउट आपके दिन में जितना भी टाइम है अपार्ट फ्रॉम योर डेली एक्टिविटी, दैट शुड बी डेडिकेटेड टू स्टडीज. वेरी परफेक्ट आंसर, वेरी परफेक्ट आंसर. आप फिर से एग्जाम दे रहे हो, यू आर गिविंग द एग्जाम? सर मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था और एज. ओके ओके ओके. चलो, ऑल द बेस्ट. तुमने आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई. आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन योर होल कन्वर्सेशन. It has enriched me also, despite that I'm teaching aspirants since last so many years. But every aspirant has taught me, and you have also taught me a lot. Thanks a lot for coming. थैंक यू सर. And Nitya, कुछ और कहना है? No, sir, I would just like to thank Savash and you for this wonderful session. Yes, there were a lot of things to learn. अगर मैं थोड़ा सा इसको summarize करूँ especially regarding the answer writing. So, ये कुछ basic चीजें हैं जो like maybe many of us know but हम उसको follow नहीं करते हैं. For example, picking up headings from the question itself. Then headings को box करना, points वाला जो एक बात है वो मुझे काफी अच्छी लगी. रादर देन डूइंग इट इन बुलेट पॉइंट्स, आप उसे न्यूमरल्स में लिखिए ताकि एग्जामिनर को वो भी एफर्ट नहीं लगाना पड़े और उसको पता चल जाए कि कितने पॉइंट्स आपने लिखे हैं. सो यस, इट वाज अ वंडरफुल सेशन. थैंक यू फॉर वैल्यूएबल इनसाइट्स, हर्ष. I do agree with most of the things said by the sir. जो पॉइंटर वाली बात है शायद वो ज्यादा अच्छी है. दूसरा हूँ जो एक मैप चार्ट फ्लो की बात कही है वो भी शायद बहुत अच्छी है. आई थिंक एस्पायरेंट्स को बहुत फायदा हुआ होगा. विल पुट इन ऑन द YouTube. You can listen it again. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. थैंक यू सर.